हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सुधीर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CUET का फंडा, जो ये बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जुलाई के महीने में, एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू आर ए क्लास 12 student. Okay, so if you are a class 12 student or if you are a dropper, then this video is for you. So please listen and see this video. Now, the first category of students is those appearing for JEE mains, for instance. So मेरी सलाह ये है कि please prepare accordingly for both editions of JEE mains. Try to get a good percentile. You could also take the private यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक बिट्स पिलानी हो गया, VIT हो गया, शिव नाडार यूनिवर्सिटी हो गया, SRM हो गया या मणिपाल हो गया. बट इन केस यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर चांसेस दिस ईयर एंड विश टू keep a BSc physics या BSc chemistry या BSc maths kind of a backup plan, then you need to write your CUET examination in the first week of July. Okay, समझ में आ गया? सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नीट एस्पिरेंट्स. मैं इन दोनों पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि कमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों के बारे में ही थे कि क्या अगर हमको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या CUET देना पड़ेगा या नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर. सो इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट्स, द सेम रूल्स अप्लाई एज दोस इन JEE मेंस. Your entrance examination for NEET could well take place in the end of June, लेकिन अभी तक डेट का बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है NTA के तरफ से. बट प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली विद एन एंड जून डेट इन माइंड. अगर उससे आगे और डेट्स मिले सो इट इज यू कैन कंसिडर दैट एज अ बोनस. अगेन, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर चांसेस इन NEET दिस ईयर and wish to keep a BSc botany, a BSc zoology, a BSc biochemistry kind of a backup, then you need to write your CUET examination as well. Understood? Okay, now ये दो categories के बारे में हमने निपटा दिया. So let's look at the basic BA honors, BSc honors, BCom honors, BA pass, etc. kind of courses. Now, CUET will be conducted in the first week of July. The syllabus will be class 12 syllabus. Let me repeat, class 12 syllabus, class 11 syllabus से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. Initially we were told that NCERT will be followed. Now we are told that some state board syllabus questions can also be included. NTA says that if you study books of NCERT and the state boards, you will be fine. You do not need any coaching. The paper will be entirely in MCQ format and choices are likely to be given. यानी कि हो सकता है कि 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़े. आई एम गिविंग एज एन एग्जांपल एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. ओके, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा. नाउ व्हाट विल द CUET इंक्लूड? सेक्शन 1 इज द लैंग्वेजेस. उसमें 13 लैंग्वेजेस का मेंशन किया गया है, विच इंक्लूड इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, पंजाबी, बंगाली एटसेट्रा. पूरे 13 लैंग्वेजेस हैं. There is a section B also here which will include languages which are not part of the section A. You know, the first 13 languages like French, Spanish, German, Konkani, Japanese, Arabic, etc. Okay. Section 2 is the domain specific subject का section, जिसमें 27 subjects have been offered and any candidate can choose up to 6 subjects. Okay. Section 3 is the aptitude, logic, reasoning kind of a paper, and some universities may actually use this section in order to consider the students for admission. Now, as of now 45 central universities ने हाँ बोल दिया है कि हम CUET के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन 2022-23 बैच के लिए देंगे. लेकिन आगे चल के स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कुड ऑल्सो यूज द CUET स्कोर. ओके, नाउ The other CUET details that you must definitely know, और इस बात को जरा ध्यान से सुनिए. Your class 12 board exam marks will be given no weightage. आपके टर्म 1 में कितने आए, टर्म 2 में कितने आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई वेटेज नहीं रहेगा. लेकिन यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, ये कह सकता है कि अगर आपको लेट्स से सीट चाहिए BCom ऑनर्स के कोर्स में, तो उसमें आपको यू मे हैव टू स्कोर एटलीस्ट से, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, 60%, 65%, 68% in the commerce subject in your class 12 board examination. So that can become an eligibility criteria.
लेकिन आपके उस 70% मार्क्स से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन इट कैन बिकम एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, जहां तक एप्लीकेशन का सवाल है, देयर इज नो अपर लिमिट टू द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई और द नंबर ऑफ कोर्सेज यू कैन अप्लाई टू। आप बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ओके, लास्ट बात, व्हाट हैपेंस टू स्ट्रीम चेंजेस। अगर मैं बीएस साइंस स्टूडेंट रहा हूं 12th क्लास तक और अभी मेरे को ह्यूमैनिटीज में क्रॉसओवर करना है, बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, so according to the draft guidelines, if you are a science student and wish to move to, say, let's take an example of English literature honors at the undergraduate level, you can clear CUET in science subjects like, say, physics, chemistry, biology plus English for admission to English honors. अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, so you can appear for English, accountancy, economics and business studies and get an English honor seat in any university. So ये थी अभी तक की जानकारी। ज्यादा जानकारी अप्रैल के पहले हफ्ते में मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलती है यहां पर हम आपको SWS पे पूरी तरह से जानकारी देते रहेंगे। सीधी बात, नो फालतू बकवास। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।